want to talk to you today about the book of remembrance. तो याद करने की किताब के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आज। Malachi chapter 1 verse 14. मलाकी 1:14। Malachi, the book of Malachi is a small book, मलाकी की किताब छोटी किताब है, 4 chapters. 4 अध्याय है उसमें, And in every chapter, और हर एक अध्याय में he tells us to fear the Lord. वो हमें कहता है प्रभु का भय मानने के लिए। So here he says, यहाँ पर वो कहता है, God is saying, प्रभु कह रहे हैं, I'm a great king मैं महान राजा हूँ and my name is to be feared. और मेरे नाम का भय माना जाना चाहिए। Yes, holy fear, holy fear. पवित्र भय। Malachi chapter 2 मलाकी 2 अध्याय verse 5. वचन 5। Now God is telling the priests and the Levites, प्रभु याजक और लेवियों से कह रहे हैं, I have made an agreement with you मैंने तुम्हारे साथ एक करार बांधा है and there's a reason, और उसके पीछे कारण है, so that you would fear me. ताकि तुम मेरा भय मानो। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ we all who are priests of God, हम सब जो प्रभु के याजक हैं, we would live in the fear of God. हम प्रभु के भय में जिएंगे। Yeah. Chapter 3, तीसरा अध्याय Malachi 3:16. मलाकी 3:16 This is one of my favorite scriptures. मेरे पसंदीदा वचनों में से एक वचन ये है, Then those who feared the Lord, तब जो प्रभु का भय मानते हैं they spoke to one another. उन्होंने एक दूसरे से कहा, And the Lord was there और प्रभु वहां पर थे and he heard them. और प्रभु ने उनको सुना। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ you will be found in gatherings like this. आप ऐसे लोगों के बीच में पाए जाओगे। Yeah. I pray मैं प्रार्थना करता हूँ this church ये कलीसिया will also have this flavor. इस प्रकार का स्वाद होगा इसमें। Yeah. I pray we will not be a church which gathers together and talks about other people. मैं प्रार्थना करता हूँ हम ऐसी कलीसिया नहीं होंगे जो इकट्ठा होकर दूसरे लोगों के बारे में बात करते रहते हैं, नहीं, But we will gather together लेकिन हम साथ में इकट्ठा होंगे with the fear of God प्रभु के भय के साथ and with a mind to honor the name of God. और प्रभु के नाम को आदर देने के मन के साथ। And when a gathering like that happens, और जैसे इस प्रकार से इकट्ठा होना होता है, God is there प्रभु वहां पर है and God is hearing you. और प्रभु उसे सुन रहा है। So today I will be talking about this, but let me tell you a few things and then we'll go there. आज मैं इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन पहले कुछ चीजें बताने दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Malachi chapter 4 verse 2. मलाकी 4 अध्याय वचन 2। Yes, now the Lord is telling all his children. प्रभु अपने सभी बच्चों से कह रहे He हैं, says, वो कह रहे हैं, if you fear my name, अगर तुम मेरे नाम का भय मानते हो 2 blessings will flow with you. तो तुम्हारे जीवन में 2 आशीषें बहेंगी। You will receive healing तुम चंगाई पाओगे and you will receive freedom. और तुम आजादी पाओगे। So in all the 4 chapters, तो पूरे 4 अध्याय में yeah, we see the fear of God, fear of God, fear of God. हम देखते हैं प्रभु का भय मानना, प्रभु का भय मानना, प्रभु का भय मानना। Okay, now let me say this. अभी मुझे ये कहने दो, It is the kindness of God ये प्रभु की दया है which brings us to Jesus. जो हमें यीशु के पास ले आती है। Okay, Romans 2:4 says, रोमियो 2 अध्याय वचन 4 कहता it's है, the kindness of God, वो प्रभु की दया है, not the fear of God. प्रभु का भय नहीं। You're all okay आप with सब me? ठीक हो? God's kindness, प्रभु की दया it brought me to God. उसने मुझे प्रभु के पास लाया, But लेकिन it is the fear of God प्रभु का भय है which will keep me away from sin जो मुझे पाप से दूर रखेगा and close to God. और प्रभु के करीब रखेगा। So, what is the fear of God? तो प्रभु का भय मतलब क्या? I know I have spoken all this, but let just few things so that you understand what I'm going to say. मैं जानता हूँ मैंने इसके बारे में बात की, लेकिन कुछ बातें बोलना चाहता हूँ ताकि आप समझना शुरू कर दो। फिर Number 1, पहला, it keeps you away from sin वो आपको पाप से दूर रखता है and keeps you close to God. और प्रभु के करीब रखता है। When you are planning to sin, और जब आप पाप करने की योजना बना रहे होते हो ना, inside you have an alarm going on. अंदर से अलार्म बजना शुरू हो जाता है। Yeah, it's called the fear of God. उसे कहते हैं प्रभु का भय। And say yes to that fear. और उस भय को हाँ बोलो, It will keep you away from sin. वो आपको पाप से दूर रखेगा, It will keep you close to God. प्रभु के करीब रखेगा आपको। Number 2, दूसरा, the fear of God प्रभु का भय brings pleasure to God. वो प्रभु के लिए खुशी ले आता है। We all look for pleasure. हम सब खुशी ढूंढते हैं And Bible says, और बाइबल कहती है at his right hand उनके दाहिने हाथ there are pleasures. खुशी है।
We are only thinking about physical pleasure, हम सिर्फ शारीरिक खुशी के बारे में सोचते हैं, pleasure of our eyes. हमारी आंखों का सुख के बारे में सोचते We हैं। are thinking about achievements and possessions. हमने जो हासिल किया है, हमारे पास जो दौलत है, उसके बारे में सोचते हैं। No, no, no. True नहीं, नहीं। pleasure, true pleasure. सच्चा खजाना, Psalm 16, last verse. True pleasure सच्ची खुशी is at the right hand of God. वो प्रभु के दाहिने हाथ पर है। If you go to heaven, अगर आप स्वर्ग में जाओगे, who you will find at the right hand of God? प्रभु के दाहिने हाथ पर आपको कौन मिलने वाला है? Jesus. यीशु। Who should be your pleasure? आपका खुशी कौन होना है? Jesus. यीशु। Do you know आपको पता है your body is getting older? आपका शरीर जो है ना बूढ़ा हो रहा है। No matter how much you treat this body, it's going to get older. मायने नहीं रखता आप कितना भी ट्रीट कर लो, लेकिन ये बूढ़ा होने वाला है। Because Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है by one man's disobedience, एक व्यक्ति के आज्ञा उल्लंघन के कारण sin entered the world. जगत में पाप आया, And through that sin, और उस पाप के कारण death has spread to all mankind. मृत्यु सारी मनुष्य जाति में फैल गई है। That's why इसीलिए all have to die. सबको मरना है, And after dying, और मरने के बाद we all stand before God. हम सब प्रभु के सामने खड़े होंगे। For what? किस चीज के लिए? To give an account. लेखा देने के लिए। So brothers, sisters, तो भाइयों बहनों, I am not trying to put fear in you, मैं आपके अंदर डर डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, but I'm trying to tell you, लेकिन मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ everything will pass away. सब खत्म होने वाला है। Only the words of the Lord, सिर्फ प्रभु के जो शब्द है ना, they will stand. वो बने रहेंगे। I pray. मैं प्रार्थना Let's करता हूँ, get ready to meet आओ Jesus. तैयार हो जाए यीशु से मिलने के लिए। Number 3. तीसरा, Yeah. What is the fear of God? प्रभु का भय क्या है? It helps you to make good decisions. वो आपकी मदद करता है अच्छे निर्णय लेने के लिए। Yeah. When you decide, जब आप निर्णय लेते हो, there are two paths, Jesus said. यीशु ने कहा दो रास्ते हैं, Broad path चौड़ा रास्ता है with a gate. जिसमें फाटक है, It's called destruction. उसे कहते हैं विनाश का फाटक। Many are going there. बहुत सारे लोग वहां जा रहे हैं, But you are not like that. लेकिन आप वैसे नहीं हो, I am not like मैं that. वैसा नहीं हूँ। We are wise people. हम बुद्धिमान लोग We हैं, hear the words of the Lord. हम प्रभु के शब्द सुनते हैं, And by the power of the Holy और Spirit, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा we do what God says. जो प्रभु कहते हैं हम वो करते हैं। That decision, वो निर्णय it keeps me on the narrow path. वो मुझे सकरे रास्ते पर रखता है, And that narrow path और वो सकरा रास्ता has a gate. उस पे भी फाटक है, It's called उसे कहते हैं life. जीवन। We all ask one another, हम सब एक दूसरे से पूछते हैं how is life? जीवन कैसा है? That means, इसका अर्थ है how's your health? तुम्हारी सेहत कैसी है, How's your family? तुम्हारा परिवार कैसा है, How's your job? तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, I don't know how. पता नहीं कैसा कैसा That's कैसा। not life. वो जीवन नहीं है। What is life? जीवन क्या है? Jesus said यीशु ने कहा in John 17, यूहन्ना 17 अध्याय में verse 3, वचन 3, this is life, यही जीवन है that you should know God. कि तुम प्रभु को जानो, You should know Jesus. तुमने यीशु को जानना है। What is life? जीवन क्या है? At the end of your life, don't say, what is all this? आपके जीवन के अंत में ऐसा मत बोलना ये सब क्या है। No. That means you have missed life. इसका अर्थ है आपने जीवन से चूक गए हो। Life is Jesus. जीवन यीशु ही है। Life is getting to know Jesus. जीवन यीशु को जानना है। Life is getting to know the Father. जीवन पिता को जानना है। Life is not about earning the whole world. जीवन पूरे संसार को जीतने के बारे में नहीं है। There are many people who don't have anything, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, but they know God. लेकिन वो प्रभु को जानते हैं। They know God. वो प्रभु को जानते हैं। Pastor, who are they? पास्टर वो लोग कौन है? It can be you. वो आप हो सकते हो, It can be you. वो आप हो सकते हो। I pray you will be rich in your relationship with God. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु के साथ जो आपका रिश्ता है ना उसमें आप धनी होंगे। Yeah. Number 4. चौथा What नंबर, is the fear of God? प्रभु का भय क्या है? The Lord is your priority. प्रभु आपकी प्राथमिकता है। Sunday रविवार का दिन, morning, सुबह का समय 10:15, 10-15 को I should be in the house of God. मैंने प्रभु के घर में रहना है। That's my priority. ये मेरी प्राथमिकता है। Morning, when I get up, सुबह सुबह जब मैं उठता हूँ I sit down to pray. मैं बैठता हूँ प्रार्थना करने के लिए। Why? क्यों? Priority. प्राथमिकता है। Not because I'm a pastor. मैं पासवान हूँ इसीलिए नहीं। I started my journey with the Lord from beginning. It was my priority. I want to meet the Lord first. शुरू से मेरी प्राथमिकता ऐसी थी, जब से मैंने अपनी यात्रा प्रभु के साथ शुरू की, कि सबसे पहले मैं मेरे प्रभु को मिलना चाहता हूँ। Yes. Then I'll meet everybody. फिर मैं बाकी सबसे If मिलूंगा। I don't meet the Lord, अगर मैं प्रभु से नहीं मिला ना, I will trouble all of you. तो मैं तुम सबको तकलीफ पहुंचाऊंगा। But if I meet the Lord, लेकिन अगर मैं प्रभु से मिला I will serve you. तो मैं आपकी सेवा करूंगा। Man is a dangerous animal without God.
परमेश्वर के बिना मनुष्य जो ना बहुत खतरनाक जानवर है, He's like an animal. वो जानवर के जैसे So he has to meet God every day. तो उसने हर दिन प्रभु से पहले मिलना है। And I pray every morning shall be your time with God. और मेरी ये प्रार्थना है हर सुबह आपका प्रभु के साथ समय होगा। Yeah. But number 5, 5वां नंबर, what is the fear of God? प्रभु का भय क्या है? It just tells you look at God ये आपको बताता है, प्रभु की ओर देखते हो and you say, wow. और आप कहते हो वाव। How many of you feel your God is wow? कितने लोगों को लगता है आपके प्रभु वाव है? How many of you feel super wow, super कितने wow? लोगों को लगता है वो सुपर वाव है? And in that wow, you worship the Lord. और उस वाव में आप प्रभु की आराधना करते हो। Yes. Number 6, 6वां नंबर, what is the fear of God? प्रभु का भय क्या है? You're faithful to God. आप प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहते हो। No matter what happens, मायने नहीं रखता जो कुछ क्यों ना हो जाए, I will be faithful to God. मैं मेरे प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहूंगा। No matter how much problem, कितनी भी समस्या क्यों ना आए, how much challenge, कितनी भी चुनौती क्यों ना आए, I will stay faithful to God. मैं मेरे प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहूंगा। Now let's go ahead. अभी आगे बढ़ते हैं। Malachi 3:16. मलाकी 3:16, Then those who feared the Lord तब जिन्होंने प्रभु का भय माना spoke with each other. एक दूसरे से बात की उन्होंने, Like right now we are speaking to one another. जैसे इस वक्त हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। And the Lord listened to what they said. और जो उन्होंने कहा प्रभु ने उसे सुना And a book of remembrance were opened. और याद किए जाने की पुस्तक खोली गई Yeah. And their names was written. और उनके नाम लिखे गए थे। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ all our names would be found. हम सब के नाम उसमें पाए जाएं। Yeah. So there's a book of remembrance. तो याद करने की किताब है And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ some things will be written about you. आपके बारे में उसमें कुछ चीजें लिखी होंगी। So what is written in the book of remembrance? वो याद करने की किताब में क्या लिखा हुआ है? Number 1, पहला, your works, आपके काम they are noted in the book of remembrance. वो याद करने की किताब में आपके काम लिखे गए। Yes. Somebody asked me, किसी ने मुझसे पूछा, does God really care? क्या प्रभु सच में परवाह भी करते हैं? Does God really think? क्या प्रभु सच में सोचते भी है? Yeah, I have good news for you. मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। Hebrews 6 verse 10. इब्रानियों 6:10, God is just. प्रभु जो है न्यायी है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। आमेन। He will remember. वो याद रखेंगे Yeah. All the work you have done. सारा काम जो तुमने किया है। जितना भी काम आपने किया है, प्रभु कह रहा है मैंने उसे याद किया है, नोट किया है यीशु के नाम में। आमेन। Put Philippians chapter 2 verse 13. फिलिपियों 2:13, God is a God of purpose. प्रभु उद्देश्य के परमेश्वर है। We have been taught by the world. हमें संसार के द्वारा सिखाया गया है, You write your story. तुम्हारी कहानी लिखो। Wrong. गलत है ये, Wrong. गलत है। I am talking to my son मैं मेरे बेटे से बात कर रहा हूँ and I am telling him, और मैं उससे कह रहा हूँ whatever happens, जो कुछ क्यों ना हो जाए, God's purpose you should finish in your life. तुमने अपने जीवन में प्रभु का उद्देश्य पूरा करना है। So God has a purpose तो प्रभु के पास उद्देश्य है and it's a good purpose. और वो अच्छा उद्देश्य है। So don't plan your own purpose. तो अपना खुद का उद्देश्य खुद मत बनाओ। I'll go to London. मैं लंदन जाऊंगा, I'll go to Dubai. मैं दुबई जाऊंगा, I'll marry a foreigner. मैं फॉरेनर लड़की से शादी करूंगा, I'll have 4 children. 4 बच्चे होंगे। Don't do like that. ऐसा मत करो, Don't do like that. मत करो ऐसा। It's not like that. ऐसा नहीं होता है। Seek the Lord. प्रभु को खोजो, Seek the Lord. प्रभु को खोजो। Let God direct your paths. प्रभु आपके मार्गों को दिशा देने दो। I am doing this work only because of God's purpose. मैं ये काम सिर्फ प्रभु के उद्देश्य के कारण कर रहा हूँ। Yeah. 10 days I have worked like I don't know what I worked like an ox. 10 दिन मैंने बैल के समान कड़ी मेहनत की है। Yeah. Maybe I've stood 10 hours in a day. शायद दिन में 10 घंटे में खड़ा रहा हूँ। I've spoken to people for hours. मैंने घंटों तक लोगों से बातें की है। If you give me the liberty, अगर आप मुझे आजादी दोगे ना, I would love to go to Goa. तो मुझे गोवा जाना बहुत अच्छा लगेगा। I would love. मुझे पसंद आएगा वो, But it's not like that. लेकिन वैसा है नहीं। Life is not like that. जीवन वैसा नहीं है। Follow the Lord. प्रभु का पीछा करो, Follow the Lord. प्रभु का पीछा करो। His purpose. उनका उद्देश्य, His glory. उनकी महिमा। One life. एक ही जीवन है, Live for Jesus. यीशु के लिए जियो। So Hebrews 6:10 says, इब्रानियों 6:10 के, God will remember all the work you have done. जो भी काम आपने किया ना वो सब काम प्रभु याद करेंगे। God will remember all the love you have showed. जो भी प्रेम आपने दिखाया वो सब प्रभु याद करेंगे।
that word purpose is very important. Can you put that? उसमें वो शब्द उद्देश्य बहुत महत्व का है। बहुत महत्व का, क्योंकि हम हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, और बाद में हमें क्या लगता है ना, सब कुछ प्रभु करने। नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है। उसका उद्देश्य, आमेन। गेट गॉड्स पर्पस। प्रभु का उद्देश्य प्राप्त कर लो। See, you can be a businessman, आप व्यापारी व्यक्ति हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, पास्टर हो सकते हो, whatever you are. जो भी आप हो, Fulfill God's purpose. प्रभु का उद्देश्य पूरा करो। Like Jesus on the cross, जैसे यीशु क्रूस पर he said, उन्होंने कहा it's finished. पूरा हुआ। Like Paul said, जैसे पौलुस ने कहा I run the race. मैंने अपनी दौड़ दौड़ी, I finished it. मैंने उसे पूरा किया, I've kept my faith. मैंने अपने विश्वास को बनाए रखा। I pray, मैं प्रार्थना करता हूं all of us, हम सब we will finish our God-given purpose. प्रभु के द्वारा दिया गया हमारा उद्देश्य हम पूरा करेंगे, And through that, और उसके द्वारा whatever work God has called you to do, जो भी काम प्रभु ने करने आपको बुलाया है do it in Jesus' उसे name. करो यीशु के नाम में। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Okay. A day will come when you will die. ऐसा दिन आएगा जब आप मरोगे। No, Pastor, we don't want to die. We want to live. पास्टर हम मरना नहीं चाहते, हम जीना चाहते हैं। We want to live. हम जीना चाहते हैं। No, no, don't do like that. ऐसा मत करो। Please don't live one day more than what God has intended for you. जो प्रभु ने आपके लिए रखा है ना, उससे ज्यादा एक दिन भी मत जीना। Fulfill God's purpose. प्रभु का उद्देश्य पूरा करो। Say goodbye to everybody. सबको गुड बाय बोलो Go to God. और प्रभु के पास जाओ। You know what Paul said? पता है पौलुस ने क्या कहा? I love to be with Jesus. यीशु के साथ रहना मुझे बहुत पसंद आएगा, But लेकिन Jesus is saying, यीशु कह रहे Jesus is saying, यीशु कह रहे stay on the earth पृथ्वी पर रहो so that you can be a blessing to all these people. ताकि तुम इन सब लोगों के लिए आशीष का कारण बनो। I pray मैं प्रार्थना your करता हूं life will be a blessing to thousands and thousands and thousands of people in the mighty name of Jesus. आपका जीवन हजारों 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 लोगों के लिए आशीष का कारण होगा यीशु के महान नाम में। Yeah. Revelation 14 verse 13. प्रकाशित वाक्य 14 में 13। So when we die, तो जब हम मरते हैं what will we take? हम क्या लेके जाएंगे? That silver of yours, वो आपकी चांदी, that gold of वो yours, आपका सोना, that shoes of yours for 15,000. वो आपके 15,000 वाले जूते। So when you die, तो जब आप मरते हो, yeah, Bible says, बाइबल कहती है blessed are the ones who die in the Lord. आशीषित है जो प्रभु में मरते हैं. What will you take? आप क्या ले जाओगे? Silver, चांदी, gold, सोना, husband, पति, वाइफ, पत्नी। कितना अच्छा होगा ना, मैं मरेगा तो सब इनको लेके जाएगा, तो कितना अच्छा होगा, सबको मरना पड़ेगा. But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है you will only take your works. तुम सिर्फ अपने कामों को ही ले जाओगे। So the moment you die, suppose you die right now, तो जिस क्षण मरते हो, मतलब समझो आप अभी मरे, you're going to heaven. आप जा रहे हो स्वर्ग। You know what's going up behind you? पता है आपके पीछे पीछे क्या जा रहा है? Your work. आपके काम। मेरी ये प्रार्थना है, कम से कम एक 60-70 डिब्बे रहने हैं तेरे काम के, नहीं तो ऐसे अकेला रहे, पूछ ही नहीं तेरी, नो टेल. कोई पूछ नहीं है। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ you will do everything that God has told you to do before you go to heaven. स्वर्ग में जाने से पहले जो भी प्रभु ने करने के लिए आपको बुलाया है वो आप उसे पूरा करो स्वर्ग में जाने से पहले। Yeah. So I pray. Have you seen a goods train? आपने मालगाड़ी देखी है क्या? मालगाड़ी, वो लोकल ट्रेन नहीं, 10-12 डब्बे का मालगाड़ी। कौन सी बड़ी वाली, कितने बड़ी है देखा आपने? 50? I have seen more than 100. मैंने 100 से ज्यादा डब्बे वाली देखी। When we are small, we used to have this habit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90. So I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ Yeah. When you go, जब आप जाओगे behind you, आपके पीछे धड़ 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 धड़. Even the angel should say, स्वर्गदूत ने भी कहना चाहिए क्या बड़ा मालगाड़ी लगाया इसने. वाह। You think about it. अब इसके बारे में सोचो। When Jesus died, जब यीशु मरे and when he went, और जब वो गए ना, what he would have taken? क्या लेकर गए होंगे? वाह। In heaven. स्वर्ग में Oh,
You will be known. आपको जाना जाएगा। तेरे पीछे आवाज आते रहेगा, आवाज आते रहेगा. Wow. It is behind you. A voice is saying, this is what he did, 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 this is what he did. And I pray, आपके पीछे से आवाज आती रहेगी, वो कहेगी ये इसने किया, ये इसने किया, ये इसने किया। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ, everything which God has called you. हर एक चीज जो प्रभु ने करने आपको बुलाया है, If he has called you to just be a good husband, अगर उन्होंने सिर्फ अच्छा पति बनने के लिए आपको बुलाया है, बन जाओ. बन जाओ। Number 2, दूसरा, yeah. What is written in the book of remembrance? तो याद करने की किताब में क्या लिखा गया है? Yeah, your words. आपके शब्द। Malachi 3:16. मलाकी 3:16, God heard the ones who feared him. जो प्रभु का भय मानते थे, प्रभु ने उनको सुना। Yeah, वो लोग सब एकत्रित हुए और वो बात कर रहे थे, प्रभु आ गया और प्रभु सुन रहा था वो लोग क्या कह रहे थे. आमेन। Can I hear an amen? आमेन। Now I have something to say about your words. आपके शब्दों के बारे में कहने के लिए मेरे पास कुछ है। Take care of your words. अपने शब्दों को संभालो। 4, 5, 10, 15. Take care of your words. अपने शब्दों को संभालो, Even in your privacy. आपके प्रिवेसी में भी। जब आप अकेले रहते हो, आप सोचो क्या बोल रहे हो, आपके मन में क्या सोच रहे हो, वो सोचो आप क्या कर रहे हो. It's very important. वो बहुत महत्व का है। Yeah, I have a scripture for you. मेरे पास आपके लिए वचन है। Yes, Matthew मत्ती chapter 12 verse 37. 12 अध्याय वचन 37। God will think, that means he will judge. प्रभु सोचेंगे, मतलब प्रभु न्याय करेंगे। He will judge you of your words. वो आपके शब्दों का न्याय करेंगे। डर नहीं डाल रहा हूँ, सुपर डर डाल रहा हूँ. सिर्फ डर नहीं डाल रहा हूँ, सुपर डर डाल रहा हूँ। We like to talk anything. हमें कुछ भी बात करना अच्छा लगता है। From today onwards, आज से आगे no talking anything. ऐसा ही कुछ भी बात नहीं करना है। Now onwards, अब से आगे we will be conscious. हम सतर्क रहेंगे। Your God is hearing you. आपके प्रभु आपको सुन रहे हैं, And one day, और एक दिन all your words are going to be judged. आपके सारे शब्दों का न्याय होने वाला है। Yeah. How many of you feel that we should say, I'm sorry, Lord, about some words I have used? कितने लोगों को लग रहा है क्या सब प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु मुझे माफ करो जो कुछ शब्द मैंने इस्तेमाल किए उनके लिए। Yeah, अभी वो माफी ले लो, लेकिन वो उसमें मत रहो, उसमें से बाहर आओ. आमीन। But look at Jesus. I like him. लेकिन यीशु को देखो, मुझे अच्छा लगता I है। like him. Luke 4:22. लूका 4:22, Everyone spoke well of him. हर एक ने उसके बारे में अच्छा बोला। He was an attractive leader. वो आकर्षित करने वाला अगुवा था। कोई आमेन नहीं बोल रहा. Somebody told me, किसी ने मुझसे कहा, I have no friends. मेरे कोई दोस्त नहीं है। I will tell you. मैं आपसे कहूंगा, ये जो तुम्हारी जबान से जो शब्द जाता है ना, वो पहले देखो मीठे या खट्टे हैं. यस, मीठे शब्द दिल से सच्चाई से बोले हुए वो लोगों को आकर्षित करता है. ये खट्टे शब्द है ना, ये लोगों को दूर भगाता है. यस। Jesus was a very beautiful, attractive leader. यीशु बहुत सुंदर आकर्षित करने वाले अगुवे थे। Yeah. Amazing leader. अद्भुत अगुवे थे, Because from his mouth, क्योंकि उनके मुंह में से what fell? क्या गिरे? Grace-filled words. अनुग्रह से भरे शब्द बाहर आए। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, from your mouth, आपके मुंह में से yeah, grace-filled words will fall. अनुग्रह से भरे शब्द बाहर आएंगे। Yeah. Even if you want to speak a strong truth, अगर आप कड़क सच्चाई भी बोलना चाहते हो, yeah, put a lot of love in it उसमें बहुत सारा प्यार डालो and put the truth inside और उसके अंदर सच्चाई डालो, and then give. फिर कहो ले। Bible says, बाइबल कहती है, speaking the truth in love, सच्चाई को प्रेम में बोलना, deep truths. कड़क सच्चाई। You can put love in it. Not I am saying, God is saying. मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन प्रभु कह रहे हो उसमें थोड़ा प्रेम मिलाओ। Open, Marsha, open. आमीन। After eating, खाने के बाद Marsha will say, मार्शा कहेगी, I didn't like it, Pastor. मुझे अच्छा नहीं लगा पास्टर ये। What I will say, मैं क्या कहूंगा, don't worry. चिंता मत करो, In the beginning, शुरू में you will not like it. तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, But लेकिन in the process, प्रक्रिया में आगे you will learn. आप सीखोगे, You will learn. आप सीखोगे, And then you will say, फिर आप कहोगे thank you, Pastor. धन्यवाद पास्टर। Use your words तो अपने शब्दों का इस्तेमाल करो to help people, लोगों की मदद करने के लिए, to build people. लोगों को बांधने के लिए। Let your words be like a gift. होने तो आपके शब्द तोहफों के जैसे हो। Yeah. People should wait for your words. लोगों ने आपके शब्दों को सुनने के लिए रुकना है। Yeah, it can become like a gift. वो उनके लिए तोहफे बन सकते हैं। Yeah.
Number 3. तीसरा, Yeah. In the book of remembrance, वो याद करने की किताब में your tears are written. आपके आंसू लिखे गए हैं। Yeah, your tears. आपके आंसू, Your tears. आपके आंसू। Psalm 56, verse 8. भजन संहिता 56 अध्याय वचन 8। You have stored my many tears in your bottle. मेरे बहुत सारे आंसू प्रभु आपने आपके बोतल में जमा करके रखे हैं। Yes. And not one will be lost. और एक भी उसमें से होएगा You नहीं। are going to answer all of them. आप उन सब का उत्तर देने वाले हो। Yeah. And then he says, फिर आगे कहता है, all my tears, मेरे सारे आंसू they are recorded in your book of remembrance. आपकी याद करने की किताब में वो लिखे गए हैं। Yeah. All my tears, मेरे सारे आंसू they are recorded वो लिखे गए हैं, in the book of वो remembrance. याद करने की किताब में। Yeah. Okay, you are ready? आप तैयार हो? Now, in your tears, आपके आंसुओं में it is not just water. वो सिर्फ पानी नहीं है, There is something inside your tear. आपके आंसू में कुछ है। Your tear, it says something. आपके आंसू कुछ कहते हैं। And God has a bottle in heaven. और प्रभु के पास स्वर्ग में बोतल है, And God takes all your tears और प्रभु आपके सारे आंसू लेते हैं and puts it. और उसके अंदर डालते हैं। And all those tears, और वो सारे आंसू, they have a voice. उनमें आवाज है And it's in a bottle. और वो बोतल में है And it's in the presence of God. और वो प्रभु की उपस्थिति में है। And all your tears, और आपके सारे आंसू they are saying something. वो कुछ कह रहे हैं And it's falling on the ears of God. और वो प्रभु के कानों पर वो शब्द पड़ रहे हैं। I have good news to tell you. मेरे पास खुश खबर है आपको कहने के लिए। Right time, सही समय your prayers will be answered. आपके प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। Right time, सही समय पर your prayers will be answered. आपके प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। You will not be disappointed. आप निराश नहीं होंगे। Yeah. Bible says, बाइबल कहती है, the expectations of the righteous धर्मी जन की अपेक्षा will not be cut off. वो जो है काटी नहीं जाएगी। Your tears, in your tears, आपके आंसुओं में there's a story. कहानी है। In your tears, आपके आंसुओं में, some of your tears, आपके कुछ आंसू, there are story of pain. उसमें दर्द की कहानी है। Some of your tears, आपके कुछ आंसुओं में there are stories of joy, आनंद की कहानियां हैं, of thanksgiving. धन्यवाद की कहानियां हैं। All tears are gathered. सारे आंसू इकट्ठा किए गए। Your expectation तुम्हारी अपेक्षा है will not be cut off, वो काटी नहीं जाएगी, but it will come to pass. लेकिन वो पूरी होगी Right time. सही समय पर। Proverbs 10:28, beta. नीति वचन 10 में 28। Okay, let's talk about our enemy. आइए हमारे शत्रु की बात करते हैं अभी। But लेकिन the expectation of the wicked दुष्ट की अपेक्षा है will become zero. वो शून्य हो जाएगी। The expectation of the wicked, दुष्ट की अपेक्षा है the one who is planning जो योजना बना रहा है to finish you, तुम्हें खत्म करने की, I declare over you, मैं आपके ऊपर घोषणा करता you हूँ, will not become zero, आप शून्य नहीं बनोगे, you will not be cut off, आप काटे नहीं जाओगे, you will survive, आप बचे रहोगे, you will revive, आप बेदारी पाओगे, you will refresh, आप ताजगी पाओगे, you will rise up आप उठ खड़े होंगे in Jesus' name. यीशु के नाम में। And I declare और मैं घोषणा करता that हूँ the expectation कि अपेक्षा of the enemy शत्रु की will be cut off. वो काट दी जाएगी। Yeah. I pray you will not just survive. मैं प्रार्थना करता हूँ कि सिर्फ आप बचे रहोगे उतना ही नहीं, Yeah, you will revive. आपके अंदर बेदारी भी आएगी Yeah, and you will do well. और आप अच्छा करोगे, Your family will do well. आपका परिवार अच्छा करेगा। So when you are going through pain, no, तो जब आप दर्द से गुजरते हो ना, just remember one thing. एक बात को याद रख। Psalm 23 verse 4. भजन संहिता 23 में 4, Yeah, the Lord is with you. प्रभु आपके साथ है। No matter how much pain you are going through, कितने भी दर्द से आप क्यों ना गुजर रहे हो, the Lord is with you. प्रभु आपके साथ है। Number 4, चौथा नंबर, your sins are not remembered, आपके पाप याद नहीं किए जाते which you have repented. जिनके लिए आपने पश्चाताप किया है। Yeah. Jeremiah 17 verse 1. यिर्मयाह 17 अध्याय वचन 1। Yeah. Sin is terrible. पाप भयानक है, It's terrible. वो भयानक है। Some people love to do evil.
कुछ लोगों को बुराई करना बहुत अच्छा लगता है and their sin is deep inside them. और उनका पाप उनके अंदर गहराई में है And sin is written on their hearts. और पाप उनके दिलों पर लिखा हुआ है। It is written with an iron pen. वो जो है लोहे के पेन से लिखा गया है। Yeah, you are writing with what? आप किससे लिख रहे हो? Yeah, ball pen, बॉल पेन से लिख रहे हो, ink pen, इंक पेन से लिख रहे हो, iPad pen, आईपैड पेन से लिख रहे हो, finger pen. फिंगर पेन से लिख रहे But हो। here it says, लेकिन यहाँ पर कहता with है an iron pen, लोहे के पेन से your sins are written. आपके पाप लिखे गए And nobody can remove the list of their sins. और कोई भी उनके पाप की जो लिस्ट है ना निकाल नहीं सकता है। मैं कुछ कहना चाहता हूं. If a man sins, अगर एक व्यक्ति पाप करता है his sins are all noted. उसके सारे पाप जो ना लिखे गए। But thank God, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, you and I came to Jesus. आप और मैं यीशु के पास आए, We acknowledged, हमने माना I am a sinner. मैं पापी हूँ, We acknowledged, हमने माना you are my savior. आप मेरे उद्धार करता हो, We acknowledged, हमने माना by your blood, आपके लहू के द्वारा my sins are forgiven. मेरे पाप क्षमा किए गए। That day, उस दिन that whole list was wiped away. वो पूरी लिस्ट जो है पोछी गई। So, if you are coming to church without knowing that Jesus has saved you from your sin, तो यदि आप कलीसिया आ रहे हो इस बात को जाने बिना कि यीशु ने आपके पापों से आपको बचाया है, yeah, it's a good thing. तो ये अच्छी चीज है। But the first thing, लेकिन पहली बात get to know ये बात जान लो you're a sinner. कि आप पापी हो, You need a savior. आपको उद्धारकर्ता की His जरूरत name है, is Jesus. उसका नाम है यीशु मसीह। That's where we begin our journey. वहीं से अपनी यात्रा हम शुरू करते हैं, Yeah, not by coming to church. कलीसिया आने से नहीं। Journey begins with Jesus. I am a sinner. He is my savior. He is my Lord. यात्रा यीशु से शुरू होती है कि मैं पापी हूँ, वो मेरे उद्धारकर्ता, वही मेरे प्रभु है। Yeah. Please put that. Unrepented sins are written in your name. जो पाप का पश्चाताप नहीं किया गया वो आपके नाम के आगे लिखे है। Yeah. Now, a lot of people repent. बहुत सारे लोग पश्चाताप करते हैं, That is different. वो अलग है। I repent, मैं पश्चाताप करता हूँ knowing जानते हुए that Jesus, कि यीशु He shed His blood. उन्होंने अपना लहू बहाया है। Jeremiah 31, 34. यिर्मयाह 31 में 34, The moment I repent, जिस क्षण मैं पश्चाताप करता हूँ God forgives. प्रभु क्षमा करते हैं, God forgives. प्रभु क्षमा करते हैं And my sins, और मेरे पाप He remembers it no more. वो उन्हें कभी याद नहीं करते फिर से। We are wicked people. हम दुष्ट लोग हैं, We tell people, हम लोगों से कहते हैं yeah, I forgive. मैं क्षमा करता हूँ, And then at the right time, फिर सही समय पे we remind them, हम उन्हें याद भी दिलाते हैं, तूने ये किया था पता तूने है? ये किया था पता है। We are very wicked people. हम बहुत दुष्ट लोग हैं, मौके का फायदा लेते हैं मौके का फायदा उठाते हैं और people को we control. और लोगों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। God doesn't do it like that. प्रभु वैसे नहीं करते। एक बार हमने पश्चाताप किया, प्रभु का जब लहू आता है वो हमें क्षमा करता है, साफ करता है और प्रभु कहता है no more I remember your sin. अब से आगे मैं तेरे पाप को याद ही नहीं रखता हूँ। Number 5, last. पांचवा आखिरी, Yeah. What does he remember? क्या याद रखते हो? Yeah. Your giving. आपका देना, It's all remembered. वो सब याद किया गया है। From 92, I came to the Lord in 92. पासवान जो है 1992 में प्रभु के पास आया। Yeah. I remember my father used to send me 1300 rupees. मुझे याद है मेरे पिताजी 1300 रुपए मेरे लिए भेजते थे। Yeah. 1300 rupees he'll send. 1300 रुपए वो भेजते थे। Yeah. I was a student, मैं उस समय विद्यार्थी था, engineering student. इंजीनियरिंग। 1300, I out of 1300, 1300 में से 130 130 रुपया is my tithe. वो मेरा दशमांश होता था। But pastor, you are not working now. लेकिन पास्टर आप तो काम नहीं कर रहे हो ना। हाँ, I know I'm not working. मैं जानता हूँ मैं काम नहीं कर रहा, Money is coming to me. लेकिन पैसा तो मेरे पास आ रहा है ना, Because I have a relationship. क्योंकि मेरा रिश्ता है प्रभु के साथ। 130 tithe. 130 दशमांश देता था, Then 130 फिर और 130 is my offering. वो मेरी भेंट होती थी। So whole month, तो पूरा महीना 260. 260 रुपए। स्वर्ग में लिखा हुआ है, वाह, आप जा सकते हो, देख सकते हो, खोलो। ओके, तो आप खाते क्या थे? हाँ 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 हाँ, आई नो, मैं जानता हूँ राइट टाइम, सही समय माय क्रो विल कम. मेरा कौवा आएगा उस समय। कौवा पता है? नहीं पता ना? कौवा कभी देता नहीं है, कौवा सिर्फ लेता है। लेकिन प्रभु ने हमेशा मेरे जीवन में ऐसे लोगों को लाया है जो देते नहीं, लेकिन मुझे देते थे वो लोग। आमेन। I learned in church
मैं कलीसिया में आया, ये कलीसिया नहीं, उधर रे जहाँ वो पे कलीसिया में जो आया। हाँ, एवरी संडे somebody will tell me, हर रविवार को कोई कहता था मुझसे, we want to take you for dinner. हम तुम्हें खाना खाने ले जाना चाहते रात के लिए। और सामने बड़ा होटल, and when eating I am saying, और खाते समय मैं कहता था, you're amazing God. आप अद्भुत हो प्रभु। वो दूसरे लोग मुझे पूछते हैं, ये तुझे क्यों लेके जा रहा? मैंने बोला मुझे भी नहीं पता। आमेन। ये कभी नहीं लेके जाएगा। मैंने बोला मुझे भी पता नहीं, लेकिन कोई तो भी डायरेक्शन दे रहा है। आमेन। अपना काम क्या है? खाओ और जाओ, प्रभु के साथ चलो। आमेन। मैं तुम्हें अभी लास्ट लाइन बोलता हूं, मुझे एक आदमी बताओ, एक आदमी जो प्रभु के साथ चला है और प्रभु ने उसकी जरूरतें पूरे नहीं की। मुझे एक आदमी बताओ, एक आदमी, एक आदमी। तो हमारा ये जो जीवन है ना, वो डर से भरा हुआ है या स्वार्थ से भरा हुआ है। इसलिए हम डिसाइड करते हैं हमको क्या करना। मैंने पहले से ही डिसाइड किया, मुझे खुद का जीवन नहीं जीना, मुझे जैसा प्रभु कहता है वैसा जीना। आराम का मामला, आमेन। लक्ष्य को जी नहीं, जीसस। आमेन। सिंपल, लिव लाइक जीसस। यीशु के जैसे जियो। जीसस सेड फॉलो मी। यीशु ने कहा मेरा आप पीछा बाइबल पढ़ते हो ना? बाइबल पढ़ते हो ना? कुछ लोग यीशु का सुन रहे थे। कितने दिन बैठ के सुन रहे थे मुझे पता नहीं, कितना दिन था, 2-3 दिन। हाँ, बाद में उनका सभा हो गया और सब लोग को जाने बोला। तभी प्रभु बोले, अरे इनको खाना नहीं दिया, ये लोग चलते चलते घर जाते जाते गिर जाएंगे। प्रभु कितना सोचते हैं, यस। ये गिर जाएंगे। प्रभु ने बोला इनको बिठाओ। फिर प्रभु ने बोला कुछ है क्या, दे दो उनके पास। वो लोग बोले नहीं कुछ नहीं। क्या था उधर? 5 मछली और 2 रोटी। वो बेचारा एक लड़का लेके आया था, उसके मम्मी ने बोला तू दूसरे किसी को मत दे, तू ही खा ले। हाँ, उनका प्रचार बहुत लंबा चलेगा। पास्टर विजय नाडर के जैसा ही है वो, यीशु चलते रहता। तो डब्बा लेके जा और चुपचाप खाते रहने का, जैसे वो बोलते रहेंगे ना, खाते रहने का। लेकिन उस दिन the anointing was so strong, अभिषेक इतना मजबूत था वहाँ he did not open the box only. कि उसने अपना टिफिन बॉक्स खोला ही नहीं। The meeting got over, सभा समाप्त हुई, then they were searching for food. फिर वो खाना ढूंढ रहे थे। That boy said take this food. उस लड़के ने कहा ये खाना लो। That was Vijay Nadar small. वो छोटे पास्टर विजय नाडर थे। Yeah. It went into Jesus' hand. यीशु के हाथ तक वो पहुंचा। Bible says बाइबल कहती है he blessed it, उन्होंने उसे आशीष दी, multiplied it, बहुगुणित हुआ fed everybody. और सबको खिलाया। Everybody was full. सब लोग खा के तृप्त हुए। कितना बाकी था? 12। कौन लेके गया? कोई लोग बोलते 12 अपोस्तल। अरे जिसने दिया वही लेता है। कौन सा 12 अपोस्तल? तू देगा तो तू लेके जाएगा। तो 12 टोकरी था, 12 टोकरी। वो उसके गांव जा रहा है अभी। अब सोच के देखो 12 टोकरी कैसा लग रहा होगा। शायद 12 लोग उसके पीछे चल रहे होंगे, छोटा लड़का। So he is walking तो चल रहा है and 12 people are going behind him. और 12 लोग उसके पीछे पीछे। Somebody said, "Hey, what happened?" किसी ने पूछा क्या हुआ? He said, उसने कहा "I met a person. मैं एक व्यक्ति से मिला, Name is Jesus. उसका नाम है यीशु। He took my tiffin." उसने मेरा टिफिन लिया और ये 12 दिया मेरे को। और ये 12 दिया मुझे। Problem is we decide how we want to live. समस्या है कि हम खुद निर्णय लेते हैं हम कैसे जीना चाहते हैं। I have decided मैंने निर्णय लिया है I want to live मैं ऐसे जीना चाहता the हूँ way Jesus has taught. जिस प्रकार यीशु ने सिखाया वैसे। Last verse, आखिरी वचन Psalm 20, भजन संहिता 20 verse 3. वचन 3। May he remember होने दो याद करे every gift you have given him. हर एक तोहफा जो तुमने उसे दिया है। May God remember all your tithe, होने दो प्रभु आपके सारे दशमांश को याद करे, your offering, आपकी भेंट को याद करे, your giving to the poor, गरीबों को जो आपने दिया है उसे, your taking care of your parents, आपके माता पिता का जो आपने ख्याल रखा उसे, your giving to the men of God, परमेश्वर के जनों को जो आपने दिया उसे, your giving to different things, the poor, the elderly, everything. अलग अलग चीजों के लिए, गरीब लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए जो भी आपने दिया वो सब। Yeah. And may God celebrate और होने दो प्रभु उत्सव मनाए every sacrifice of love you have shown him. हर एक जो प्रेम का बलिदान आपने उन्हें दिखाया है। ये सब लिखा हुआ है। आमीन। जब तू प्रार्थना करता ना, हे प्रभु मुझ पर दया कर मेरे पैसों के क्षेत्र में, आपका किताब खोला जाता है।
शायद आप में से कुछ कुछ लोग बोलेंगे लेकिन मैं देता नहीं हूं फिर भी मेरे पास है। अब मैं तुम्हें समझाता हूं। प्रभु से प्राप्त करने के लिए दो ही तरीके, एक दया और एक विश्वास। आमेन। एक दया, एक विश्वास। बहुत सारे लोग यहां ऑपरेट करते हैं दया, लेकिन प्रभु चाहता है दया से आप कहां पर आओ? विश्वास। विश्वास यानी क्या? जो प्रभु के वचन में लिखा है वो करो। और देने के क्षेत्र में बहुत सारे लोग यहां जीते हैं, और जब चैलेंज आता है प्रभु से कहते हैं हे प्रभु मला विसरू नको। जब चुनौती आती तो कहते हे प्रभु मुझे भूलना मत। लेकिन जो विश्वास में जीते हैं ना, उनको पता है ओके गॉड टोल्ड अब्राहम, प्रभु ने अब्राहम से कहा आई वांट योर सन। मुझे तेरा बेटा चाहिए। प्रभु बुढ़ापे में आपने मुझे एक बेटा दिया। आपको पता है एक नाम है प्रभु का, यहोवा जायरा। यहोवा यिरे। उसका मतलब पता है? तेरे जो जरूरत है वो उसने ऑलरेडी देखा है, और उसके लिए जो भी करना है वो ऑलरेडी भेज दिया है। आमेन। ओके प्रभु ने क्या मांगा? आइजक। चलो इसहाक मांगा। ओके सो आई ब्रिंग माई आइजक। तो मैं मेरा इसहाक लेकर आ रहा हूँ। हाँ चलो आइजक। हाँ ये बाजू से मैं आ रहा हूं मेरे बेट को लेके, वो बाजू से प्रभु आ रहा है। इन एवरी गिविंग, हर एक देने में यू आर डूइंग समथिंग, आप कुछ कर रहे हो, गॉड इज गोइंग टू डू। प्रभु कुछ भेज रहे हैं। यू कैन नेवर आउट गिव गॉड। आप देने में कभी प्रभु को हरा नहीं सकते। वो चैंपियन है, आमेन। चैंपियन। अगली बार बता। I was ready. वो तैयारी था मारने। I was ready to kill him. मारने के लिए मैं तैयारी था। Yeah, because the moment you remove the knife, you have to give blood. क्योंकि जिस क्षण आप वो छुरा निकालते हो अपने लहू बहाना पड़ता है। Suddenly God said, अचानक से प्रभु ने कहा stop. रुको, I now know अभी मैं जानता हूं you fear me. कि तुम मेरा भय मानते हो। Again I say, फिर से मैं कहता हूं when you give what God says, जो प्रभु मांगते जब आप उसे देते हो it is a sign वो एक चिन्ह है that you fear the Lord. कि आप प्रभु का भय मानते हो। So God said, your son is not dying. तो प्रभु ने कहा तेरा बेटा नहीं मरेगा। Then who will die? फिर कौन मरेगा? लाओ उसको, उसे ले आओ। yeah. सब मेरे साथ मानो। ऑल ओके? सब लोग ठीक है? यू आर नेवर एट लॉस। आप कभी नुकसान में नहीं हो। आपकी परीक्षा लेकिन जरूर ली जाएंगे। यस जरूर। यस। और पैसे के क्षेत्र में तो 100%। पैसे के क्षेत्र में तो 100% लिया जाएगा। लेकिन मेरी ये प्रार्थना है हम सारे पास होने वाले हैं यीशु के नाम पर। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को आशीषित करे।